दिए सर। हाँ, वो सर असाइनमेंट के लिए सर वो ईमेल आईडी नहीं भेजे थे ना, इसलिए नहीं बना था। ठीक है, मैं ईमेल आईडी का ये कर दे रहा हूँ, भेज दूंगा आज। और कोई सिलेबस कुछ भी एनीथिंग ऐसा लग रहा है कि हमें इस पर मटेरियल चाहिए या फिर इस पर कुछ समझाना है तो बता सकते हो, फ्री है, ठीक है। बाकी हमारे तरफ से तो सिलेबस कवर है। बाकी थोड़ा बहुत स्टडी खुद से भी करना चाहिए। हमको नहीं लग रहा है बच रहा है, मोटा मोटी अब तो छोटा मोटा जो भी टॉपिक होगा अगर लग रहा होगा ऐसा कि हाँ बाकी है, डिस्कशन है, तो बता देना है, ठीक है। या फिर रिपीटेशन भी कोई टॉपिक चाहिए तो बता देना, मैं समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो हमारा लास्ट टॉपिक है एक्वा फीड स्टोरेज स्टडी एंड क्वालिटी कंट्रोल। समझ ही रहे हो टॉपिक्स, अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स एज वी नो कि हमारे पास कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड्स सच लाइक मॉइस्ट फीड, सेमी मॉइस्ट फीड्स एंड ड्राई फीड्स, जो भी फीड्स है वेरी ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन ड्यूरिंग टाइम्स। After some times, if you are storing the feed, semi-moist or the dry feeds, um, during storage times, they degrade and in quality because so many problems, so many factors are responsible for the degrading of the quality of the feeds, such like nutrient degradations also. Nutrient का भी degradation होता है after some times if you are not storing in the proper way. So the very important things for the storing the feeds and that storing of the feeds also affects on the quality of the feeds and the performance of the feast growth. So, and the aquaculture points of the view, the storings and the quality control of the quality control of the aqua feeds is very important. If you are not storing the proper way, if you are not storing the in the proper scientifically conditions and the proper conditions, so you know perform the good performance of the feeds on the aquaculture. तो आप सपोज दैट्स अगर आपने फीड को स्टोर किया है और प्रॉपर वे में नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि हाँ प्रॉपर वे में ही करना है, उसको लॉन्ग टर्म तक भी नहीं करना है। बहुत अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो भी आफ्टर सम टाइम्स वो डिग्रेड होने लगता है उसके न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट तो डिग्रेड होता ही है, साथ ही साथ और भी अदर इंसेक्ट्स, फंगल्स या फिर जो भी है मोल्ड्स वगैरह, उसका भी इन्फेक्शन हो जाता है। So, or such like some nutrients, such like the vitamins, minerals, and the lipids, during the course of the times, they destroyed. After some time, the lipids, such like the oxidations, you know very well what is the oxidations, and some vitamins are very susceptible to the lights and the temperatures. High temperatures, also some vitamin destroys and the lights. Some are responsible. So the storing is the very important factors, and the proper way storing is the very important factors for the performing the aquaculture. So during storing, if you are the, not store the proper way, the feed or ingredients, the losses. What is the losses and what is the major important categories if we are not performing the very well conditions of the feeds, the weight loss. So your स्लाइड नहीं दिख रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, स्लाइड नहीं दिख रहा है। और स्लाइड नहीं दिख रहा है, और सॉरी सॉरी, एक मिनट। अभी दिख रहा है? यस सर। So the after the preparation of the feed, the storing फैक्टर्स और स्टोरिंग जो क्राइटेरिया है हमारा स्टोर करने का, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। The losses occurring in the feed stops during the storage fall under 4 categories. The first one is the weight loss. Your feed is not in better condition, your nutrient is not in a better conditions. The first affects on the fish growth performance and the loss the weights and also the feed weight loss. समटाइम्स अगर सपोज दैट कोई न्यूट्रिएंट है या फिर क्या बोल सकते हैं फीड है और उसमें कोई फंगल अटैक हो रहा है या फिर इंसेक्ट अटैक हो रहा है, तो उसके वेट में भी लॉस होता है। क्वालिटी का लॉस, न्यूट्रिएंट में डिग्रेडेशन हो रहा है तो हेल्थ पर इफेक्ट करेगा,
some deficient of nutrient, so causing the some deficiency disease. some डिजीज का जो आपने स्लाइड्स देखा उसमें देखा होगा कि किस न्यूट्रिएंट के डिफिशिएंट से कौन सा डिजीज हो जाती है, देखे होंगे तो पता चला होगा। और ऐसे भी कुछ कुछ जानते ही हैं आप लोग। तो हेल्थ रिस्क भी होता है, इकोनॉमिक्स लॉस। अगर हमारा कोई फीड्स है जो बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उससे इकोनॉमिक्स लॉस भी होती है। सो द 4 मेजर कैटेगरी: वेट लॉस, द क्वालिटी लॉस, हेल्थ रिस्क एंड इकोनॉमिक्स लॉस। ओके, so these losses, the main categorize the activities by which the losses: quality loss, health risks and economics loss. The first one is the insects, microorganisms, temperatures, some other animals such like birds वगैरह भी affects करता है, improper handling and chemical changes. These activities, the loss, the feed weight and the quality of the nutrients affects on during storage. So deterioration of the feeds, the first one is the harming insects, the second one is the rodents and birds, microbial actions, fungal actions, oxidations, the chemical actions and storage practice. So these are the factors responsible for the deterioration of the quality of the feeds and the ingredients. Not only feeds, also affect the ingredients. If you are storing the ingredient for the preparation of the feeds, not storing the ingredient in the proper way, if the nutrient is degrades and the quality affecting, these ingredients used for the feed preparation also affect the feed qualities. So the not only the feed storage in the better conditions, also storing the ingredients, those ingredients which are using the preparation of the feeds. So the first one is the temperatures. सर बर्ड्स कैसे करेगा सर? क्या क्या बर्ड्स कैसे करेगा इफेक्ट? कौन कौन? बर्ड सर, रोडेंट। हाँ, वो कैसे करेगा? तो आपने अगर स्टोर नहीं किया है प्रॉपर वे में, अगर सब खुले, सपोज दैट अपना ऐसा रूम है या फिर स्टोर रूम है जो ओपन है जहाँ पे बर्ड आ सकता है, जैसे आपने वेंटिलेटर बनाया है या फिर विंडोज है ओपन है तो बर्ड नहीं आता है, आएगा ही। अच्छा, या फिर हमने वैसे इंग्रेडिएंट की यूज किया जहाँ पे बर्ड का कंटामिनेशन हो चुका है, बर्ड उसको ले रहा है, तो बर्ड के थ्रू भी तो पैथोजन आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है। तो हमको वो सारे कंडीशंस को कंसीडर करना है जो अफेक्ट कर सकता है। So the temperature है, तो temperature is a very important factor for affecting the quality of the feed because that is the responsible for the growing of fungal and microorganisms. So अगर suppose that temperature उसका proper conditions है, जैसे कि most of the insects का जो growing करने का जो optimum temperature है 28 डिग्री से, ठीक है, इन ट्रॉपिकल कंडीशन, तो हमको उस टेम्परेचर पर स्टोर नहीं करना है। या हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि बहुत सारा अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगता है। तो हमको ऐसा टेम्परेचर को अप्रोप्रिएट कंडीशंस में लेना है कि जहाँ पे वो क्या हो सके कि इन्फेक्शंस नहीं हो सके इंसेक्ट का, यानी उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर कंडीशंस में हमको नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर सपोज दैट्स मोर देन 70% है, या फिर जैसे जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है तो वैसे वैसे इंसेक्ट का पॉपुलेशन भी इंक्रीज करता है। तो मोर देन 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द प्रोग्रेसिव इंक्रीज द इंसेक्ट मल्टीप्लिकेशन। सो यू आर द मेंटेनिंग द कोल्ड स्टोर या फिर जहाँ पे हमारा स्टोरेज हाउस है, द मेंटेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी the less than 70%. If you are storing the more than 70% relative humidity, the moisture content is very high. That times the conditions of the attacks of the insects and the fungal. So the relative humidity को भी consider करना है। Next है losses due to insects। अगर suppose that insect का attack हो गया है तो contamination हो सकता है उसमें किसका, feces का या फिर उसके एक्सक्रीटा का, उसके थ्रू भी contaminate होता है, उसके एक्सक्रीटा टॉक्सिक प्रोड्यूस कर सकता है। बेवेव पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स, odors and microorganisms. These are the factors through insects that are responsible for the contamination of the feed. Some pathogens का carrier भी हो सकता है वो। Some populations favorable conditions में अगर दे रहे हैं, that time population increase करेगा तो भी वो affect कर सकता है। Suppose that कि थोड़ा बहुत अगर हुआ है तो हो सकता है कि वो affect नहीं करे, लेकिन अगर उसको हम favorable conditions provide कर दे रहे हैं जिसके थ्रू उसका population increase कर रहा है, that times वो loss कर सकता है। तो क्या क्या होगा, वो वेट लॉस होगा, फंगल ग्रोथ लीड करेगा, ठीक है। और
अगर हम चाहते हैं कि बेटर वे में वो रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका टाइम टू टाइम क्या करेंगे, चेकअप करते रहेंगे, विजिलेंस, द सेपरेशन ऑफ द इन्फेस्टेड फीड्स। अगर सपोज दैट हमको पता चला है कि कोई अगर ऐसा पैकेज है जहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, बाकी पैकेज सब नहीं हुआ है, तो उस पैकेज को हम लोग आइसोलेट करते हैं। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू टाइम इन्वेस्टिगेशन और विजिलेंस फॉर द कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन। तो सम इंसेक्ट्स है और उसका कॉमन नेम्स है जो ससेप्टेबल्स है फीड स्टेप्स का। मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो इंसेक्ट्स है वो ऑल इन ग्रेन्स में या फिर ऑल फीड्स में वो अटैक कर सकते हैं। सम रिस्पॉन्सिबल है, जैसे वीवेल्स है, स्टिफिलस स्पेसीज जैसे सीरियल ग्रेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ओराइजिफिलस स्पेसीज है वो सीरियल ग्रेन्स बाई प्रोडक्ट्स एंड वाइल्ड केक तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सम एग्जांपल्स है स्टेफिलस स्पेसीज या फिर ट्राइबोलियम स्पेसीज और राइजोफिलस स्पेसीज, ये रिस्पॉन्सिबल है, कॉमन नेम है। some are responsible for the some cereal grains and the cereal byproducts and the wild cakes. Some are responsible for only cereal grains infections and some are responsible for the wild cakes. Some are responsible for the both cereals and the wild cakes, and some are responsible for the cereals byproducts cereals and wild cakes. तो दो ऐसे तो बहुत सारा है बट सम एग्जांपल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, एंड दीज आर द पिक्चर्स फॉर राइस। ये देखे भी होंगे, अगर ग्रेन्स वगैरह होंगे गांव में जिनका घर होगा, अगर देखे होंगे स्टोर वगैरह करते हैं, तो सम दीज आर द इंसेक्ट्स फॉर इन्फेक्टिंग ड्यूरिंग द स्टोरिंग। जैसे कहीं घर में भी देखे होंगे बहुत सारा हम लोग सीरियल्स का स्टोर करते हैं, आफ्टर सम टाइम जब निकालते हैं तो उसमें देखोगे बहुत सारा झिल्ली टाइप से बन जाता है, उसमें इंसेक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है। रोडेंट्स का एक डाटा है ये कि एवरी रैट्स जो होता है अराउंड 10,000 ड्रॉपिंग्स और 4 लीटर ऑफ यूरिन एंड 5 फ्लाइक्स ऑफ हेयर पर ईयर, ठीक है, चांसेस है इतना इन्फेक्शन होने का। तो ओवरऑल जो देखा गया है जो रोडेंट्स जो होता है, अगर सपोज दैट स्टोर हाउस में अगर रोडेंट्स का इन्फेक्शन हो गया या फिर वो चला गया है, तो जनरली जो होता है 8.5% ऑफ द बॉडी वेट पर डे के हिसाब से वो फीडिंग करता है, तो इतना लॉसेस का चांस रहता है, तो इसका भी ध्यान रखना है रोडेंट्स का। ठीक है, ये बर्ड्स है, तो जनरली कॉज बाय द बर्ड 0.8% ऑफ द स्टोर मटेरियल। ये ओवरऑल ये बताया गया है कि जनरली जो ओवरऑल हमारा फीड ग्रेडियंट्स है या फिर इनग्रेशन जो ग्रेन्स है उसका जो लॉस करने का जो एवरेज परसेंटेज है वो 0.85% है। ठीक है, और ईच बर्ड कैन कंज्यूम एन एवरेज 25 ग्राम पर डे। ठीक है, 25 ग्राम है, सॉरी ये लिखा गया है जो हमारा जो कंज्यूम करता है ग्रेन्स उसके बारे में, 25 ग्राम बर्ड्स पर डे, मतलब इतना वो कंज्यूम करने का चांसेस है। वन बर्ड्स का है ना सर? क्या क्या सर एक बर्ड्स का है ना? हाँ, एवरेज वो बताया गया कि 25 ग्राम चांसेस है वो ये कंज्यूम करने का, एवरेज बताया गया। यस सर। ये माइक्रोबियल एक्शंस है, सम माइक्रोबियल एक्शंस द मॉइस्चर कंटेंट 25%, एक फेवरेबल कंडीशंस बताया गया है कि सब द माइक्रोबियल एक्शंस का कंटामिनेशन होने का चांस है इफ द सपोज दैट द मॉइस्चर कंटेंट। जो ड्राई फीड्स है हमारा, वो ड्राई फीड्स का स्टोरिंग करते हैं, उसका मॉइस्चर कंटेंट तो लेस देन 10% होता है। इफ सपोज दैट इफ यू आर स्टोरिंग द ड्राई फीड्स more than 25% of the moisture content, that time the microbial actions are very active. So that we were storing, first if the check the moisture content, okay, so the moisture content 25%, relative humidity 90%, temperature 35 to 45%, these are the favorable conditions for the microbial actions. And so control कैसे करेंगे? So the moisture content तो heats वगैरह है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हम लोग वेल वेंटिलेटेड या फिर ऐसा रूम रखें जो हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल करे, मॉइस्चर कंट्रोल को भी कंट्रोल करे, ताकि हमारा माइक्रोबियल एक्शन का कंटामिनेशन नहीं हो सके। फंगल एक्शंस सिमिलर्स है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 70%, टेम्परेचर 35-40%, मोस्टली जो है एस्परजिलस फ्लेवस है, पेनिसिलियम स्पेसीज है, ये रिड्यूस करता है न्यूट्रिएंट वैल्यू बाय एंजाइमेटिक डाइजेशन एंड द लॉसेस ऑफ डाइटरी न्यूट्रिएंट्स। So if you are the fungal actions on the nutrient or ingredients, so losses the nutrient by the action of enzymatic digestion. वो अपने वो जो उसका डाइजेस्टिव एंजाइम है उसके थ्रू वो डिग्रेड करता है न्यूट्रिएंट को। The major affections the mycotoxins, तो जो हमारा ये फंगल एक्शंस है वो टॉक्सिक्स को प्रोड्यूस करता है। You know very well the mycotoxins, these are the carcinogenic. So the weight loss करेगा ये,
जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें जब इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करता है, वो इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर की इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली है कि अदर जो पैथोजन है उसका इन्फेक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। तो क्या करेगा, वो वेट लॉस करेगा, डिस्कलरेशन हो जाता है, मस्टिशनेस या फिर ऑफ फ्लेवर हो जाता है। So these are the chemical changes, the unsaturated fatty acids, the breakdowns. So the cause the oxidations and the rancidity. So the lipid get rancid by breakdowns. Okay, the fermentation of the carbohydrates, the reductions of the amino acid availability, vitamin and mineral potency decreases, and more susceptible to vitamin C. So these are the activity, chemical changes activity during the storing. लिपिड ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसमें फ्री रेडिकल रीजनरेट होता है। दैट फ्री रेडिकल्स आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर द ऑफ फ्लेवर्स एंड डिसकलरेशंस। ओके, so these free radicals if you are the not storing, suppose that अगर हमारे पास ऐसा फीड्स है जिसमें लिपिड कंटेंट हाई है, या फिर लिपिड का तो हम लोग यूज करते हैं ये फीड्स में, तो प्रॉपर वे में अगर स्टोर नहीं करते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, या फिर हाई टेम्परेचर पर भी वो शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो लिपिड्स है उसका ब्रेकडाउन होता है और उससे हाइड्रोक्साइल फ्री इनिशिएशन यानी फ्री रेडिकल रीजनरेट होता है। देख लो यहाँ पे फ्री रेडिकल रीजनरेट हो रहा है, हाइड्रोक्साइल आयंस है। these ions are the lipids of responsible for the off flavors. स्टोरेज प्रैक्टिसेस, फिर क्या करना है हमको, तो जनरली जो हम लोग जो प्रैक्टिसेस करेंगे वो हाइजेनिक कंडीशंस में करेंगे, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर्स, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स को प्रोटेक्शन करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज टाइम इज द मिनिमम, हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज नहीं करेंगे, या फिर फीड प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फीड का परचेज कर रहे हैं तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जब हमको कंज्यूम करना है उसी समय प्रिपेयर करें या फिर परचेज करें। ओके, और जो हम लोग बैग वगैरह यूज कर रहे हैं वो न्यू यूज करना है, ओल्ड को नहीं यूज करना है। स्टोरेज टाइम, ये सम फीड टाइप्स दिया हुआ है, ड्राई फीड्स है, इंग्रेडिएंट्स है, वेटेड इंग्रेडिएंट्स है, ग्रेन्स है, विटामिन मिनरल्स है। ये स्टोरेज टाइम दिया हुआ है टेम्परेचर एंड ट्रॉपिकल कंडीशंस में। ड्राई फीड है जनरली 1 to 2 मंथ हम लोग टेम्परेचर ट्रॉपिकल दोनों में करते हैं, बट यहाँ पे देखो इंग्रेडिएंट्स है जनरली हमारा जो ट्रॉपिकल कंडीशंस है 1 to 2 मंथ्स के लिए करते हैं, बट इन द टेम्परेट कंडीशन 2 to 3 मंथ्स। ओके, एंड द ग्रेन्स और वाइल्ड केक्स है जनरली हम लोग कम करते हैं क्योंकि वाइल्ड है। ओके, तो और यहाँ पे है हमारा टेम्परेट कंडीशन 2 to 3 मंथ कर सकते हैं। विटामिन मिनरल्स 5 to 6 मंथ, 5 to 6 मंथ, ये दोनों कंडीशंस में। तो सम ओवरऑल है ये, नॉट इन एग्जैक्टली, बट समटाइम्स द वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ओके, the feed storage facilities, the storage facility well insulated, ventilated, and storage in the hopper and the silos, and the insulations in the storage condition to prevent the extreme cool and heat. Insulators should be water and vapor proofs. इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करेंगे ताकि उसमें हीट और टेम्परेचर का इन्फेक्शन ज्यादा नहीं हो सके। ओके, जो हमारा जो ब्लॉक बना होगा वो 215 मिलीमीटर डेंस हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, 6 मिलीमीटर सीमेंटेड फाइबर सैंडविच, और इसका ये दिया हुआ है डिजाइनिंग, नॉट इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जब डिजाइनिंग करेंगे तो करेंगे, बट हमारा वेल इंसुलेटेड होना चाहिए ताकि हमारा कूलिंग और हीटिंग का जो बाहर से जो इफेक्ट करता है वो प्रिवेंट कर सके, ये ध्यान रखना है। जो रूफ वगैरह का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे कॉन्क्रीटेड सीमेंट फाइबर शीट्स का करेंगे, ठीक है, और जो फ्लोर होगा डेंस कंक्रीट का होगा। वेंटिलेशन प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि एयर एक्सचेंज टू लो टेम्परेचर एंड कंट्रोल ह्यूमिडिटी, मेन पर्पस यही है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। ये है these are the silos and the hoppers where you are storing the precautions measures to maintain the quality of the feeds। तो हमको कहाँ करना है स्टोरेज, the storage the feed and dry place, cool ventilated area, feed should be stored in the wooden spacer to not more than 5 bag to silo maintain air circulation। जब हम लोग बैग का ये करते हैं स्टोरिंग करते हैं तो 5 बैग से ज्यादा का स्टैक्स लगा के नहीं रखते हैं। ओके, feed should not be stored in the direct sunlight because the sunlight affect the some nutrients, some vitamins and minerals। The feed should not be stored for the longer periods, long time के लिए हम लोग को स्टोर नहीं करना है। Feed should be used within 2 to 3 months, कोशिश करना है कि हमको 2 to 3 मंथ में यूज कर ले। ओके, क्या नहीं यूज करना है, डॉज एट द वे, सॉरी, क्या यूज करना है क्या नहीं करना है, ये प्रिकॉशंस है। प्रोवाइड द सेपरेट स्टोरेज बिल्डिंग विद एडेक्वेट फेंसिंग एंड द
लॉकेबल डोर्स, हमको कहाँ पे इसका करना है, हमको ऐसे जगह पे स्टोर करना है जहाँ पे लॉकेबल डोर्स हो। इंश्योर टू अवॉइड रेन वाटर थ्रू द रूफ, हमको ऐसे जगह में स्टोर करना है रेन वाटर रूफ के थ्रू नहीं होता। सपोज कोई कोई ऐसा भी रूफ होता है जहाँ पे वो सीपेज होता है या फिर वाटर का रिसना होता है, तो वहाँ पे नहीं करना है। वेंटिलेशन पॉइंट वेंटिलेटेड होना चाहिए। एंट्री पॉइंट टू ए मेसेज, ताकि कंटामिनेशन नहीं हो सके, कुछ जा नहीं सके इंसेक्ट वगैरह। ओके, और वहाँ पे हमको रजिस्टर या फिर लॉगबुक को भी मेंटेन करना है कि कौन सा फीड कब आया है, कितना टाइम के लिए है, ताकि हम उसको टाइम टू टाइम चेक कर सके, टाइम टू टाइम उसका यूज कर सके। तो यू द रजिस्टर द रिकॉर्ड एंड अमाउंट ऑफ फीड रिसीव इन स्टोर्ड हाउस। Oldest feed must be used first. Okay, feed sack must be placed on the wooden spacer to avoid the moisture. Remove old sacks and use things जो हमारा old जो बोरा वगैरह है उसको पहले यूज करना है। Keep the store and clean. Okay, क्या हमको यूज नहीं करना है, avoid the damp and insect infested feeds. Plan to purchase the feed to avoid the higher stacks. Do not walk on stacks and compounded feeds. Do not allow worker to eat, sleep and smoke. Sacks must not touch sides walls. मतलब जब हम क्या हमको इस तरह से रखना है ताकि इंसेक्ट का इन्फेक्शन नहीं हो सके। स्टैक्स का हम लोग इस तरह से अरेंज करें ताकि हमारा जो ओल्डर हो पहले यूज कर सके, जो न्यूअर है उसको हम लोग रख सके लॉन्ग टर्म के लिए। और जो भी हम स्टैक्स का जो यूज करते हैं वो वॉल में सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, तो ओवरऑल हमें यही है कि वेल वेंटिलेटेड, और क्या बोल सकते हैं कि दोज प्लेसेस आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग द फीड वेयर द मॉइस्चर कंटेंट नॉट मोर देन 70% एंड टेम्परेचर is controlling in the well conditions where you are storing the feeds for the long time for maintaining the nutrient and the quality of the feed for the performance of the aquaculture points of the view. Okay, if you are not storing very well way, you are not performing the growth performance of the fish. So you the keeping the minds before the preparation of the feeds or purchasing of the feeds for the storing condition and the storing facilities क्या है आपके पास। ओके, तो ये है ओवरऑल। ज़्यादा कुछ तो था नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि डिफिकल्ट है। फिर भी कोई अगर डाउट्स है तो बताइए कहाँ पे है। एनीवन? इजी था? हेलो हेलो, बोलो कोई भी। यस सर। हाँ बता दो, हमें तो कुछ नहीं लग रहा है। रीडिंग करो एक बार, कोई दिक्कत है तो फिर बताओ मुझे। सर एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला बतला दीजिए सर। रिलेटिव जहाँ स्टोर करेंगे उससे रिलेटेड है। हाँ, जहाँ पे स्टोर करेंगे उस इन्वायरमेंटल कंडीशन की, जो हमारा ये रूम है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो कंडीशन है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब क्या, वाटर कंटेंट की बात हो रही है ना। तो जो अगर फीड है और एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर फीड में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फीड में तो मॉइस्चर हम लोग काउंट करते हैं ना। यस सर। हाँ, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात हो रही है। ओके सर। और एनी कोई डाउट? सर ये लिपिड ऑक्सीडेशन जो है, हाँ तो सर इसमें ये जो इनिशिएशन प्रोपगेशन ये सब बनाने के टाइम होता है या बाद में कहीं? नहीं, अगर सपोज दैट हम जैसे देखते हो कहीं कहीं पे हमारा लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर करते हैं तो जो हमारा अनसैचुरेटेड लिपिड्स है उसमें होना शुरू हो जाता है इनिशिएशन। ठीक है, यस, मतलब जितना टाइम के लिए उसको हाँ, रखेंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोज कर रहे हैं सनलाइट में भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर पे भी हो सकता है। कभी हम बोलते हैं कि नहीं कि हमको नहीं खाना है, क्या बोलते हैं कि जो हम बाहर का समोसा वगैरह नहीं खाना है, क्यों बोलते हैं? वहाँ पे एक ही वायल को बार बार वो रेसिफाइड करते रहता है, तो उसमें जितना ज़्यादा वो करेगा उतना ज़्यादा वो फ्री रेडिकल्स होगा, तो उतना ज़्यादा वो डेंजर होता है हमारे ऑर्गन के लिए, लिपिड्स के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें डेंजर जब ये आयन जब बन जाएगा, ये आयन रिस्पॉन्सिबल होता है वो डैमेज का। ऑक्साइड पेरोक्साइड जो लिपिड पेरोक्साइड्स होता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज इन द ऑर्गन। और फिर ये ऑफ फ्लेवर देना शुरू करता है फिर। ओके, थैंक्स। ओके, हेलो
यस सर। अब तुम लोग टॉपिक देखो पूरा, ठीक है। हम समझते हैं कि तुम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल का भी कॉन्टेक्ट देख लो, ठीक है। और कोई डाउट है तो ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो हम समझा देंगे ना कि क्या कर सकते हैं उसमें। एक हमको बताना है, वो जब तुम लोग आओगे तो फीड कैसे फॉर्मुलेट करते हैं इन एक्सेल सीट, ये हम बताएंगे। यहाँ पे आओगे तो ये यहाँ नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो ड्यू है हमारा। कैसे हम, सपोज दैट हमारे पास 5 6 7 8 10 इंग्रेडिएंट है, तो कैसे हम फीड को बनाएंगे हम प्रॉपर वे में, मतलब हम कैसे अपने हाथ से बना लेंगे। जैसे तुम्हारे पास 5 7 इंग्रेडिएंट है, हाउ टू प्रिपेयर द फीड फॉर्मुलेशन, कि किसका कितना लेंगे, किसका कितना लेंगे, ताकि हमारा न्यूट्रिएंट, एनर्जी और प्रोटीन लेवल मेंटेन रहे। तो ये हम बताएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी कोई भी टॉपिक से कोई भी डाउट है? सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर फीड स्टोरेज में हम ड्रग्स का यूज करते हैं क्या? क्या चीज का? फीड स्टोरेज में हम ड्रग्स का यूज करते हैं? ड्रग्स का, प्रिजर्वेटिव का यूज करते Yes, हैं sir. ड्यूरिंग फीड प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, ड्रग्स का यूज करते हैं। स्टोरेज में भी सुना करते हैं कीजिए सर, जेडायरेक्टिन का। क्या चीज का? एजाडायरेक्टिन, नीम का सर, नीम का जो। हाँ तो वो ड्रग्स, अब वो तो वही बता रहे हैं ना कि हम बहुत सारा ऐसा चीज का यूज करते हैं, जैसे कि हर्बल जो बोल रहे हो, ठीक है ना। तो वो हम यस यूज सर। करते हैं ताकि हमारा इंसेक्ट वगैरह का इन्फेक्शन नहीं हो सके। जैसे करेंजन का भी लीफ यूज करते हैं, ठीक है वो ना। सब तो नेचुरल हुआ सर, हाँ सिंथेटिक ड्रग्स यूज नेचुरल, होता है सर। हाँ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, वही तो बोल रहे हैं ना, प्रिजर्व करना, मतलब ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सके, तो इन्फेक्शन नहीं हो सके। यस। प्रिजर्वेटिव ये बोल रहे हैं, यूज करते हैं ना, प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं, वही है। और बहुत सारा ड्रग्स का यूज करते हैं एज ए प्रमोटर के रूप में, ठीक है। हाँ और बताओ। ठीक है, तो इंड किया जाए, अगर नहीं है सवाल तो फिर। यस सर। ठीक है, एनीबॉडी, कोई भी बता दो। और हाँ किसी को भी कोई डाउट है, कॉल कर सकते हो, बता सकते हो, वो हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक कोई यस सर। ठीक है, ओके यस सर, ठीक। ओके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।